7th class in English letter in 9th lecture, page number 31, and lesson number 5 of unit number 2. Today we will read about the series of the letter Daddy Long Legs. Okay, first of all we will observe the before we start. This is the question that the writer is asking you. Have you ever written a letter and posted it? Do you think people do not like writing letters nowadays? आपका क्या ख्याल है कि आजकल लेटर्स लिखे जाते हैं? कभी आपने खत लिखा और उसे पोस्ट किया है? और आजकल जो है लोग उसको पसंद क्यों नहीं करते लिखना? And then read the story of a girl through her letters. This is the letter of the series and we will read about an orphan girl with these letters. Okay, 7th class, first of all we will discuss the difficult word meanings. Our first word is orphan. Child whose parents are dead, brought up, grew up, glimpse, glance, famous, well known, expected, hopeful, entertaining, amusing, admits, confess, suppose, think, impatiently, restlessly, pissed, slanted, awful, inspiring fear, author, writer, prose, in the form of paragraph. Then dependent, relying on, charity, alms, sponsored, prompted, identity, personality, series, sequence, literature, literary work, embarrassing, shame, encyclopedia, knowledge of all books, retreat, refuge, mosquitoes, armed soldiers, instructor, teacher, priest, deliver a speech, overlooking, look over, judgments, opinion. Okay, now 7th class we will discuss the letters and their themes. First two letters and their word meanings you have to learn, and the remaining letters we will just discuss about their theme. Okay, Daddy Long Legs is the story of an orphan girl. This is the novel of Jane Webster. Jane Webster इसकी जो writer है उसने लिखा है इसे. It is an epistolary novel. It means this is the novel is relating to the series. Series means like episode, first, second and third. एपिसोड के शेप में से लिखा गया है. There was an orphan girl in the novel. नॉवल में एक orphan girl है that who is the hero of the novels, who brought up in an orphanage, जो एक यतीम खाने में परवरिश पाती थी. Her name was Jerusha Abboud. उसका नेम जेरुशा अबोड है. Who liked to be called जडी, जो पसंद करती थी कि उसे जडी बुलाया जाए. After her schooling education, she was sponsored by one trustee for her higher education at the age of 17. जब वो 17 की होती है और उसकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है, for the higher studies उसे एक ट्रस्टी को सौंप दिया जाता है जो उसकी देखभाल करता है और उसको उसके ड्यूज़ को पूरे करता है. Okay students, Jody had never seen her trustee. She wrote him a letter every month but she didn't reply. जडी ने कभी भी अपने ट्रस्टी को नहीं लिखा था. वो हर महीने उसे खत लिखा करती थी लेकिन उसे उसका कभी भी रिप्लाई नहीं मिला था. जडी जस्ट कॉट हिज ग्लिम्स ऑफ हिज शैडो ऑन द वॉल. उसने सिर्फ उसकी जो एक ग्लिम्स है, एक नज़र है, उसको देखा था, उसके साए को. शी कंसिडर्ड हिम अ वेरी टॉल मैन एंड गिव हिम नेम डैडी लॉन्ग लेग्स. उसे उसका जो साया है बहुत बड़ा नज़र आता है, उसकी टांगें काफ़ी बड़ी लगती हैं तो उसके नेम दे देती है डैडी लॉन्ग लेग्स. So this is the series of the letters we will learn. Okay students, this is the very first letter which wrote Jody to Daddy Long Legs on the 10th October. जो वो 10th October को उसको लिखती है. In letter number 1, she asked her trustee about her the Michael Anglo के बारे में वो सब पूछती है. She considered him an archangel. वो माइकल एंग्लो को एक बहुत बड़ा फरिश्ता समझती है और वो उसको बताती है. द होल क्लास लाव्ड एट हर बिकॉज शी वॉज एन फेमस आर्टिस्ट ऑफ द इटली इन द मिडल एजेस. उसको बताती है कि वैसे एक फरिश्ता समझती थी लेकिन वो एक फेमस आर्टिस्ट है इटली का. शी आल्सो डिस्कस अबाउट मैनी थिंग्स विच आर नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट. वो उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करती है इस लेटर में जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती. शी टोल्ड हिम अबाउट द क्लास फेलोज़. उसकी क्लास फेलोज़ के बारे में बताती है एंड देयर नेचर, उनके बिहेवियर के बारे में भी बताती है. दैट शी लाइक्ड सैली एंड गुड पर्सन
एंड जूलिया लीस्ट, जूलिया को उतना पसंद नहीं करती, बट द सैली मोस्ट। शी आल्सो गेव हिम रिपोर्ट अबाउट हर सब्जेक्ट्स एंड द सिलेबस, उससे अपने सब्जेक्ट्स और सिलेबस के बारे में भी रिपोर्ट देती है। इन द थर्ड लेटर विच शी रोट हिम ऑन द 26 March, Judd became very much aggressive and complained that why did he not give the reply of her letters। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, गुस्से में आती है कि वो उसके लेटर्स का रिप्लाई क्यों नहीं देता। शी कंसिडर्ड दैट शी वाज अ प्राउड मैन, कि वो प्राउड मैन है, प्राउड ट्रस्टी है, एंड जस्ट फुलफिलिंग हर नीड्स और नथिंग एल्स, जो सिर्फ उसकी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है और कुछ नहीं। शी इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट हर रिजल्ट ऑफ लैटिन एंड ज्योमेट्री विच शी पास्ड लास्ट वीक, वो उसे अपने रिज़ल्ट के बारे में बताती है जो वो लास्ट वीक पास हो चुकी होती है इसमें। इन द फोर्थ लेक्चर विच शी रोट हिम ऑन द 2 April, जो उसे 2 April को लिखती है, जरूशा रिक्वेस्ट डैडी एंड प्लीज टू पार्डन हर फॉर हर वेरी ड्यूड बिहेवियर इन द प्रीवियस लेटर, जो प्रीवियस लेटर में उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है उसके लिए उससे माफ़ी मांगती है। शी आल्सो टेल्स अबाउट हर टॉन्सिल्स एंड अबाउट हर प्रेजेंस इन द हॉस्पिटल, वो उसके टॉन्सिल्स के बारे में और उसकी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बारे में उसे बताती है। जरूशा says to daddy that until you forgive me she cannot get well because she is much embarrassed now. In the second last letter which she wrote on the 4th April, जो वो 4th April को लिखती है, she says her thanks and shows her gratitude to make her feel very special and important, वो उसे अपना थैंक्स कहती है और अपना शुक्र अदा करती है, शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट जो है फ़ील करवाया। शी थैंक्स एवर सो मच, वो उसे बहुत ज़्यादा थैंक्स कहती है फॉर द लवलीस्ट रोड बर्ड्स। शी प्रोमिसेस दैट शी विल नेवर रीड अगेन एंड विल राइट हिम मोर इंटरेस्टिंग लेटर्स, वो उसे वादा करती है कि वो कभी भी खौफजदा नहीं होगी और उसे इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखा करेगी पहले से भी ज़्यादा, बिकॉज शी हैज़ बिकम अवेयर दैट डैडी रीड्स हर एवरी लेटर, वो इस बारे में जान चुकी है कि डैडी जो है उसके हर लेटर को पढ़ते हैं। ओके, 7th क्लास इन द लास्ट लेटर शी हैज़ रिटन ऑन फ्राइडे, जो वो उसे फ्राइडे को उसने लिखा था। शी डिस्कसेस हर रूटीन लाइफ एंड हर रिलेशन विद द अदर पर्सनस, वो अपनी रूटीन लाइफ को, अपनी स्टडी वाली लाइफ को और रिलेशन जो है उसके क्लास फेलोज़ के साथ है और जो उसकी एरिया में दूसरे लोग हैं उसके साथ जो रिलेशन हैं उनको डिस्कस करती है। जरूशा नाउ हैज़ ग्राउंड इनटू अ मेच्योर पर्सन में वो तब्दील हो चुकी है। नाउ शी हैज़ अ proper sense about the things and decides to stick to her aims in life without giving up, वो डिसाइड करती है कि वो अपनी एम्स के साथ लगी रहेगी, ट्राई करती रहेगी, गिव अप किए बगैर, तरक किए बगैर। शी डिसाइड्स नेवर टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, वो डिसाइड करती है कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी मुश्किल के बारे में कंप्लेन नहीं करेगी। एंड विल मेक हर वेज इन लाइफ इन एवरी केस, शी इज़ नॉट वरीड अबाउट हर सक्सेस, अपनी कामयाबी के बारे में खौफजदा नहीं है कि वो उसे मिल सकेगी या नहीं, बट शी विल मस्ट कैरी ऑन विद द थिंग्स, लेकिन वो चीज़ों के साथ ज़रूर जारी रखेगी अपनी कोशिश को। एज यू शुड कैरी ऑन। स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अ वेरी गुड लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द जरूशा बोर्ड। जरूशा बोर्ड की ज़िंदगी से हमने बहुत ज़्यादा अच्छा जो है सबक हासिल किया। दैट हाउ कैन वी गेट आवर एम्स इन आवर लाइफ। जरूशा जो कि एक यतीम लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़िंदगी के अच्छे पॉइंट पर आ जाती है और पॉजिटिव सोचना शुरू कर देती है। तो पॉजिटिविटी ही जो होती है ना, हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है। हम ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे खड़े हैं, जब तक पॉजिटिव नहीं सोचेंगे हम कोई भी चीज़ जो है वो गेट नहीं कर सकते। दिस इज़ द वेरी थिंग दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द जरूशा।